نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اوكے تو اسم الموصول کیا ہے ہم یہ دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد اسم الموصول کبھی بھی جو ہے اکیلا نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے صلۃ الموصول. یہ صلۃ الموصول کے پاسبلٹیز ہے کہ یہ جو ہے تین چیزوں میں آ سکتا ہے، یا تو وہ جملہ اسمیہ ہو سکتا ہے، یا تو وہ شبہ جملہ ہو سکتا ہے، یا تو وہ جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں صلۃ الموصول. اب ہم نے دیکھا اسم الموصول کی اقسام ہوتی ہے. اوکے، کون سی ہے؟ یہ صرف کیا واحد اور مثنیٰ ہوتا ہے؟ نہیں، ہم جیسا ہر چیز میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ واحد اور مثنیٰ اور جمع ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ مذکر اور مؤنث بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الذی واحد کے لیے، اللذانی جو ہے مثنیٰ کے لیے، اور اللذانی اور اللذینی یہ جو ہے ایسے ہے، یہ معرب ہے. جب رفع میں ہو تو وہ اللذانی ہوگا، اور حالت نصب اور جر کے لیے اللذینی ہوگا. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے ہم نے دیکھا فار فیمیل، فیمیل کے لیے اللتی واحد ہے، اللتانی اللتینی جو ہے مثنیٰ ہے، اور اللتانی حالت رفع میں ہے، اللتینی جو ہے حالت نصب اور جر کے لیے ہے. اوکے، اور اس کے علاوہ ہم نے کیا دیکھا؟ جمع کے صیغے دیکھے ہیں. کیا ہے؟ الذین سب سے زیادہ آیا ہے قرآن میں، کامنسٹ اور اسم الموصول ان دا قرآن، سب سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے اس کا الذین کا. اور یہ جو ہے مبنی ہوتے ہیں. کون سے مبنی ہوتے ہیں؟ جو واحد کے ہے اسم الموصول، اور جو جمع کے ہے، چاہے وہ مذکر کے لیے ہو چاہے وہ مؤنث کے لیے ہو، یہ دونوں بھی کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ سیم، اس کی شکل سیم ہوتی ہے لیکن اس کی حالت الگ الگ ہو سکتی ہے. حالت رفع میں ہو سکتا ہے، نصب میں ہو سکتا ہے، اور جر میں ہو سکتا ہے. آپ کو اس کے آگے یہ پچھلے کی چیزیں دیکھنی ہوگی، اور تب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ یہ اسم الموصول جو واحد اور جمع کے ہے، یہ جو ہے کون سی حالت میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے دیکھا. اور ہم نے کیا دیکھا کہ اس کا میننگ کیا ہوگا؟ الذی کا وہ جو. اوکے، وہ جو، یا کبھی وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یا پھر کبھی جو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ڈیپینڈنگ اپون دا آیت کے حساب سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے. وہ جو ایک مذکر، وہ جو دو مذکر، وہ جو سب مذکر، وہ جو ایک مؤنث، وہ جو دو مؤنث، وہ جو سب مؤنث. اس طرح سے اس کا ترجمہ آئے گا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹیبل پکے سے آ گیا. اور جب ہم نے انگلش میں اس کا ترجمہ دیکھا، ہم کر رہے تھے دیٹ ون ہو، دیٹ ون وچ. دیٹ ون ہو جب ہم کریں گے جب ہم کسی عاقل کے بارے میں بات کر رہے ہوں. دیٹ ون وچ کا ہم ترجمہ کب کریں گے انگلش میں؟ جب ہم غیر عاقل کے بارے میں بات کر رہے ہوں. اوکے، تو آج ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے، ضروری چیز. اب جو میں پڑھانے جا رہی ہوں تو اس کو جو ہے آپ لوگ دھیان سے سنیے گا. ہم نے اب تک پڑھا کہ اسم الموصول ہوتا ہے، اور اس کے بعد صلۃ الموصول ہوتا ہے. صلۃ الموصول میں تین پاسبلٹیز ہے. اوکے، یا تو وہ جملۃ الاسمیہ ہو سکتا ہے، یا تو وہ شبہ جملہ ہو سکتا ہے، یا تو جملۃ الفعلیہ ہو سکتا ہے. ہم یہ دیکھیں. اب یہ دو چیزیں کنیکٹڈ رہتی ہیں آلویز، ہمیشہ. اسم الموصول، اس کے بعد صلۃ الموصول کیسے بھی آتا ہے. اوکے، اب اسم الموصول بھی جو ہے، میں جب کہہ رہی تھی کہ آپ کو اسم الموصول کی ڈیپینڈنگ اپون اس کے آگے پیچھے کیا ہے، وہ جو ہے آپ کو تین حالتوں میں ملے گا: رفع، نصب اور جر. یہ تین حالتوں میں آپ کو ملے گا. تو آپ کیسے پہچانیں گی کہ اسم الموصول جو یہاں پر ہے وہ کون سی حالت میں ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اوکے، میں یہاں پر وائٹ بورڈ لگاتی ہوں تاکہ ٹھیک ہے. اوکے، تو سب سے پہلے چیز یاد رکھیے، نمبر 1 کیا ہے؟ اگر اسم الموصول سے پہلے، اسم الموصول سے پہلے اگر کوئی معرف باللام
लाम वाला, अलिफ लाम के साथ, विथ अलिफ लाम के साथ वाला इसम आपको दिखे, तब आप इसको क्या कहेंगी? तब आप इस इसम मौसूल को कहेंगी कि ये सिफत है। सिफत, सिफत यानी कि एडजेक्टिव है। ओके, किसका सिफत है ये इससे पहले जो मुअर्रफ बिल्लाम है ना, इसका सिफत है, और ये हो जाएगा मौसूफ। अभी हमने मौसूफ और सिफत की टॉपिक नहीं पढ़ी है, लेकिन क्योंकि आपको इंग्लिश में आता है कि सिफा, सिफा यानी कि किसी की क्वालिटी बयान करना, कि वो कैसा है। या तो सिफा अच्छी हो सकती है या तो बुरी हो सकती है। मैं बोल सकती हूँ कि मेहनती लड़का, मैं बोल सकती हूँ कि लेजी लड़का, है ना। अगर मैं बोली मेहनती तो वो उसकी अच्छी क्वालिटी हो गई। अगर मैं बोली कि लेजी लड़का, कामचोर लड़का, ओके, तो उसकी बुरी सिफत होगी, लेकिन सिफत तो है उसकी। ओके, तो हमें याद रखना है कि अगर इसम मौसूल से पहले कोई मुअर्रफ बिल लाम वाला इसम आ जाए, अलिफ लाम वाला इसम आ जाए, तो हम इसम मौसूल को कहेंगे कि वो सिफा है। किसकी सिफा है? अब ये सवाल आएगा, किसकी सिफत है तो वो उससे पहले जो अलिफ लाम वाला इसम है ना, उसकी सिफत है। ओके, ये हो गई फर्स्ट कैटेगरी। अब सेकेंड कैटेगरी क्या है कि इसम मौसूल अगर आपका हो और उससे पहले, हम पहले की बात कर रहे हैं, ओके, इसम मौसूल के बाद सिलतुल मौसूल होता है, वो डिफरेंट चीज है। ठीक है, जब हम पढ़े कि इसम मौसूल के बाद सिलतुल मौसूल आता है, और वो उसके 3 पॉसिबिलिटीज है कि या तो जुमलतुल इस्मिया होगा, या तो जुमलतुल फेलिया होगा, या तो शिबुल जुमला होगा, वो सिलतुल मौसूल की बात है। इस्मुल मौसूल की हालत क्या है, क्या वो रफा में है, नसब में है, जर में है, हम वो कैसे पहचानेंगे? उससे पहले वाली चीजों को देखेंगे, इस्मुल मौसूल से पहले, बिफोर। ठीक है, बिफोर इस्मुल मौसूल से पहले देखेंगे हम। ओके, तो सबसे पहली चीज हो गई सिफत। सिफत कैसा पहचानेंगे? जब आप इस्म मौसूल से पहले कोई मुअर्रफ बिल लाम यानी कि अलिफ लाम के साथ इस्म आ जाए, तो आप उसको कहेंगे कि वो सिफा है। किसकी सिफा है? इस्मुल मौसूल सिफा बना हुआ है। किसकी सिफा बना हुआ है? उससे पहले जो अलिफ लाम वाला इस्म है, उसकी सिफा बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है इस्मुल मौसूल से पहले अगर आपको कोई ऐसा इस्म दिखे, ऐसा इस्म दिखे जिस पर अलिफ लाम ना हो और ना ही तनवीन हो। ये किसकी प्रॉपर्टी है, अलिफ लाम ना होना और तनवीन ना होना? वेरी गुड, ये मुदाफ की प्रॉपर्टी है। ओके, ये मुदाफ की प्रॉपर्टी है। क्या है मुदाफ की प्रॉपर्टी? कि वो अलिफ लाम के साथ नहीं आता कभी भी, और तनवीन के साथ नहीं आता। तो अगर आपको ऐसा इसम आपको नजर आए कि उससे पहले अलिफ लाम ना हो और तनवीन ना हो, तो यहाँ पर ये इस्मुल मौसूल हो जाएगा मुदाफ इलैह। क्या हो जाएगा? मुदाफ इलैह। ओके, मुदाफ इलैह। ठीक है, मैं क्या बोली कि अगर इस्मुल मौसूल से पहले ऐसा कोई आपको इसम दिख रहा है कि जो बगैर अलिफ लाम के हो और बगैर तनवीन के हो, ना उस पे तनवीन है और ना ही उस पर अलिफ लाम है, तो इस्मुल मौसूल आपका हो जाएगा मुदाफ इलैह। और ये तो पहले वाला इसम तो मुदाफ है ना। ओके, ठीक है, ये हमारी सेकेंड कैटेगरी हो गई। ओके, यहाँ तक समझ आ गई आप सबको? यस और नो? हम अभी तक सिर्फ 2 कैटेगरीज पढ़े। एक, अगर अलिफ लाम हो तो वो हो जाएगा सिफत, और दूसरी, अगर अलिफ लाम ना हो इस्मुल मौसूल से पहले वाले इसम पे, तो वो हो जाएगा मुदाफ इलैह। और ऑब्वियसली वो जो इसम जिस पर अलिफ लाम नहीं है और तनवीन नहीं है, वो हो जाएगा आपका मुदाफ। ठीक है, अब थर्ड वाली कैटेगरी क्या है हमारी, कि इसम मौसूल से पहले अगर हर्फ जर हो, ओके, हर्फ जर हो, तो ऑब्वियसली ये इसम क्या हो जाएगा? ये इसम हो जाएगा मजरूर, है ना। इसम मजरूर, ये
इस्मुल मौसूल हो जाएगा इसम मजरूर, ओके, इसम मजरूर। और ये हर्फ जर तो है, हम बहुत बार देखते हैं लिल्लदीना कुरान में, है ना। ये किसका कॉम्बिनेशन है? ये हर्फ जर लाम और अल्लदीना का कॉम्बिनेशन है, ओके। अलल्लदीना, इस तरह से हम देखते हैं। अब जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, आपको ये याद रखना है कि अलिफ लाम वाला अलिफ जो है ये हमजतुल वसल होता है, ये हमजतुल क़तई नहीं है, ये हमजतुल वसल है। तो जब इसको ज्वाइन किया जाता तो ये ड्रॉप हो जाता, खास तौर पे लाम के साथ। हम ये देखे थे हर्फ जर जब हम पढ़ रहे थे। तो ये हो जाएगा, इस तरह से हमें लिखना होगा लिल्लदीना, ओके, इस तरह से। तो थर्ड कैटेगरी हम क्या पढ़े कि इसम मौसूल मजरूर हो सकता है। कब वो मजरूर होगा? अगर उससे पहले वाला इसम हर्फ जर हो, तो ऑब्वियसली इसम मजरूर आपका मजरूर हो जाएगा, है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी में आपका इसम मौसूल बन सकता है खबर, ओके। जुमलतुल इस्मिया में मुब्तदा और खबर। कब वो बनेगा खबर? जब इससे पहले इसम इशारा आए। इसम इशारा क्या है? इसम इशारा क्या है? हादा, हादिही, ज़ालिका, तिलका, ओके, मुअन्नस मुज़क्कर के लिए करीब और बाइद, हम ये पढ़े थे। तो इसम इशारा आए, या तो इसम इशारा हो ऑप्शन 1, या दमायर हो, ओके, इसम दमायर। इसम दमीर अगर हो, दमीर यानी कि प्रोनाउंस जो हम पढ़े, प्रोनाउंस अगर हो। थर्ड कैटेगरी है इसम अलम। व्हाट इज इसम अलम? इसम अलम का मतलब क्या है? इसम अलम का मतलब क्या है गर्ल्स? प्रॉपर नाउन्स, ओके, किसी का नाम, जगह का नाम, ओके। डेफिनेट, डेफिनेट नाउन नहीं, प्रॉपर नाउन। डेफिनेट नाम तो, नाउन तो हम अलिफ लाम को भी बोल सकते हैं, अलिफ लाम के साथ अल किताब भी डेफिनेट हो गया, ओके। मारिफा की अक़साम में से एक अक़साम है ये, लेकिन ये नाम है किसी का, जगह का नाम है, शहर का नाम है, मुल्क का नाम है, या फिर इंसान का नाम है, ओके। तो इसम अलम, ये तीन चीजों के बाद, इन तीन चीजों के बाद कौन कौन? इसम इशारा, इसम दमीर और इसम अलम जो है, इसके बाद अगर इसम मौसूल आए तो याद रखिए हमेशा ये खबर होगा। अभी हम एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको मुझे बोलना है ये सब चीजें, पहचान के कौन कौन क्या है, ओके। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे चौथी वाली कैटेगरी क्या पढ़ी हमने? इसम मौसूल खबर बनता है, ओके, खबर। कब बनेगा वो खबर? अगर इसम मौसूल से पहले या तो इसम इशारा हो, या दमीर हो, हुआ, हुमा, हम, ये वाले दमीर हो, या इसम अलम हो। ये सब चीजें अगर हो इसम मौसूल से पहले, तो वो हो जाएगी खबर, ओके। ये हमारी चौथी चीज है। पांचवी चीज हमारी है कि इसम मौसूल हो सकता है मुब्तदा भी, अगर वो सेंटेंस की शुरुआत में आए, सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर आए, तो वो हो जाएगा मुब्तदा, ओके, इस तरह से हो जाएगा। ओके, चलिए, तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब हमेशा जो है याद रखिए, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, ये चीज दो अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। किस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं? वो समझते कि हम इसम मौसूल की हालत पहचानेंगे रफाना सब्जर में सिलतुल मौसूल से। सिलतुल मौसूल से हम नहीं पहचानेंगे। जब हम बात किए थे ये इस चीज पे कि ये वाला कि इसम मौसूल है, उसके बाद जो है सिलतुल मौसूल आता है, ओके। तो
ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये दोनों हमेशा रहते हैं, इसम मौसूल और सिलतुल मौसूल। ठीक है, इसम मौसूल के बाद सिलतुल मौसूल आता है, और वो या तो शिबुल जुमला होगा, या तो जुमला इस्मिया, या तो जुमला फेले, ये सब होगा वो। लेकिन हम अगर मुझे पहचानना है कि ये वाला इसम मौसूल की क्या हालत है, क्या वो रफा में है, नसब में है, जर में है, चाहे वाहिद हो, मुसन्ना हो, जमा हो, तो आपको कैसे पहचानना होगा? आपको इससे पहले वाली चीजें देखनी होगी कि क्या है। ओके, ठीक है। ये इसमें हमने देखा कि 5 चीजें हो सकती है, 5 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जो कि हम एग्जाम्पल से देख रहे हैं अभी। वो कौन सी थी जो हम देखे? सबसे फर्स्ट देखे, इसम मौसूल जो है सिफत बन के आ सकता है, एडजेक्टिव। सिफत का मतलब क्या है? एडजेक्टिव, किसी की जो है ना क्वालिटी को बयान करना कि वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है, उसको हम सिफत कहते हैं। हम उर्दू में भी बोलते हैं ना कि सिफा, इसकी सिफा ये है कि ये खराब है या अच्छा है, इस तरह से सिफत। अब हम जो है ना, सिफत वो कब बनता है? जब इसम मौसूल से पहले अलिफ लाम वाला इसम हो और रफ बिल लाम वाला इसम हो, तो ये हो जाएगा सिफत। ठीक है, किसकी सिफत हो जाएगा? इसम मौसूल, उससे पहले अलिफ लाम वाले इसम की ये सिफत हो जाएगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट चीज हमने ये पढ़ी। सेकेंड चीज हमने क्या पढ़ी? इसम मौसूल जो है, अगर इससे पहले अलिफ लाम या तनवीन के बगैर कोई इसम आए, तो हम उस इसम को उस इसम को मुदाफ कहेंगे, और इसम मौसूल को हम मुदाफ इलैह कहेंगे। ठीक है, क्योंकि मुदाफ की प्रॉपर्टी तो सिंपल है कि अलिफ लाम और तनवीन के बगैर नहीं आता। अच्छा, अब मेरा सवाल क्या है, क्या मैं इसको, इससे पहले मुदाफ और ये इस्मुल मौसूल, इन दोनों को क्या मैं मुरक्कब इदाफी कह सकती हूँ? क्या मैं इन दोनों को मुरक्कब इदाफी कह सकती हूँ? यस और नो? क्यों नहीं? क्यों नो? यस तो वाई यस, नो तो वाई नो? क्यों नो? क्योंकि सिलतुल मौसूल से पहले क्या आता है? सिलतुल मौसूल के बाद क्या आता है? यानी कि इस्मुल मौसूल के बाद सिलतुल मौसूल आता है। ओके, नहीं, मुदाफ मुदाफ इलैह की प्रॉपर्टीज है वो। ओके, ऐसा नहीं है कि वो मुदाफ मुदाफ इलैह की प्रॉपर्टीज नहीं फॉलो कर रहे हैं, मुदाफ और मुदाफ इलैह की प्रॉपर्टीज है, लेकिन क्योंकि मबनी है, आपको नहीं समझ में आएगा यहाँ पर कि वो मजरूर है। लेकिन आपको जवाब क्या देना चाहिए इसका, कि आप इस इसम मौसूल तो देख लिए, उससे पहले वाला इसम तो देख लिए, ये दोनों को देख लिए, लेकिन क्या इसम मौसूल कभी भी अकेला होता है? नहीं होता, उसके बाद सिलतुल मौसूल होता है कैसे भी। ठीक है, तो अब हम सिलतुल मौसूल को तो छोड़ नहीं सकते, हालांकि ये मुरक्कब इदाफी ही हुए। ओके, ये मुरक्कब इदाफी ही हुए, क्योंकि इससे पहले वाला इसम मुदाफ की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, और मुदाफ इलैह इसम मौसूल बना हुआ है। लेकिन इसम मौसूल कभी भी अकेला नहीं होता, उसके बाद सिलतुल मौसूल होता है, जो कि कनेक्टेड होता है इसम मौसूल से ही। यानी कि अगर डिपेंडिंग अपॉन कि अगर बात जुमलतुल इस्मिया की हुई, या फिर फेलिया की हुई, या फिर शिबुल जुमला हो। ओके, जैसे चीजें हो, अगर वाहिद है तो वाहिद इस्तेमाल हो गया, अगर जमा है तो जमा का इस्तेमाल होगा, मुसन्ना की बात की जा रही है अगर, तो मुसन्ना का इस्तेमाल होगा, इस तरह से इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या पढ़ा? इसम मौसूल है, उसके बाद सिलतुल मौसूल आता है। सिलतुल मौसूल के 3 कैटेगरीज है। अब ये चीज खत्म हो गई यहाँ पर। अब इसम मौसूल की अलग अलग हालतें हो सकती हैं, रफा नसब जर। अब हम कैसे पहचानेंगे कि वो हालत रफा नसब जर में है? वो 5 चीजें हैं। कौन सी? यहाँ पर सिफा बनी हुई है, अगर अगर इसम मौसूल से पहले मुअर्रफ बिल लाम वाला इसम आ जाए अलिफ लाम के साथ, तो वो सिफत हो जाती है। अब सिफत का क्या है? जैसी मौसूफ होता है, अगर सपोज मौसूफ आपका हालत रफा में हो, तो सिफत भी हालत रफा में होती है। अगर मौसूफ आपका हालत जर में हो, यानी कि मजरूर हो, तो सिफत आपकी भी मजरूर हो जाती है। अगर आपका मौसूफ हालत नसब में हो, तो सिफत भी हालत नसब में हो जाती है। ओके, जैसा एग्जैक्टली वो एक दूसरे को कॉपी करते हैं।
अब मुदाफ और मुदाफ इलैह का क्या है, आपको मालूम है ये हमेशा कि मुदाफ का एक रूल है कि हल्का होता है, तनवीन नहीं होती, अलिफ लाम नहीं होता। और मुदाफ इलैह का भी एक ही रूल है, क्या एक रूल है कि वो हमेशा मजरूर होता है। ओके, तो यहाँ पर वो हो जाएगा हालत जर में, है ना। जब वो मुदाफ इलैह बना, कौन मुदाफ इलैह बना, जब इस्म मौसूल मुदाफ इलैह बना तो वो हालत जर में हो जाएगा। थर्ड, तो हमारा हमने फिर से इस्म मजरूर की कैटेगरी देखी। अगर इस्म मौसूल से पहले हर्फ जर अगर आ जाए तो वो इस्म मौसूल हो जाएगा मजरूर। ओके, तो ये हमने तीसरी कैटेगरी देखी। चौथी कैटेगरी हमने देखी, इस्म मौसूल से पहले अगर इशारा हो, इस्म दमीर हो, इस्म आलम हो तो वो खबर हो जाएगा। ठीक है, और खबर की प्रॉपर्टी क्या है कि वो हालत रफा में होती है, मुब्तदा और खबर हालत रफा में होते हैं, तो यहाँ पर इस्म मौसूल हालत रफा में हो जाएगा। ओके ना, फिफ्थ कैटेगरी हमने पढ़ी, वो कौन सी थी कि इस्म मौसूल मुब्तदा की तरह भी आ सकता है अगर वो सेंटेंस की शुरुआत में हो, और यहाँ पर मुब्तदा की प्रॉपर्टी क्या आती है कि वो हालत रफा में होते हैं मुब्तदा भी, तो यहाँ पर भी इस्म मौसूल हालत रफा में हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इस्म मौसूल को पहचानने का तरीका कि वो कौन सी हालत में बना हुआ है, क्या वो हालत रफा में है, नसब में है या जर में है। ओके, अगर सिफत हो तो वो मौसूब के अराब को फॉलो करेगा, उसकी तरह आएगा। ओके, अगर इससे पहले अलिफ लाम वाला कोई इसम हो तो आपको सिर्फ सिंपली इसम मौसूल देखे आप, ओके इसम मौसूल देख लिए, उसके पहले आप अलिफ लाम वाला इसम देखिए। फॉर एग्जाम्पल अल किताब, अल किताबुल्लज़ी, फॉर एग्जाम्पल आप देखें। ओके, अब मैं अगर आपसे सवाल करूं यहाँ पर ओके, अल्लज़ी इसम मौसूल है, अल्लज़ी की अरबी हालत क्या है, तो आप इससे पहले वाला चीज देखेंगे, अलिफ लाम के साथ इसम है। ओ, इससे पहले तो अल किताबू है, अलिफ लाम के साथ वाला इसम है, तो मैं बनाऊंगी इसम मौसूल को सिफत हो जाएगी, वो किसकी सिफत हो जाएगी, अल किताबू की, ये हो जाएगा मौसूफ। ठीक है, ओके हो गया। अब मैं इसकी एराबी हालत कैसे पहचानूं, मैं सिंपली वो अलिफ लाम वाले इसम के ऊपर की एंडिंग केस देखूंगी, यहाँ पर रफा है तो अल्लज़ी भी मेरा क्या हो गया, हालत रफा में हो गया। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ आई। अब फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं यहाँ पर फी रख दी हूँ और यहाँ पर अगर हर्फ जर फी आ जाए तो क्या हो जाएगा, किताबू की हालत क्या हो जाएगी, अल किताबी हो जाएगा। ओके, अल किताबी। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पर अल्लज़ी की हालत क्या है, आप देखेंगे सबसे पहले अल्लज़ी से पहले क्या आया है, अल्लज़ी से पहले अल किताब अलिफ लाम के साथ वाला इसम आया है। वो अलिफ लाम के साथ अगर इसम आया है तो मुझे बनानी है अल्लज़ी, मेरा जो इसम मौसूल है ये हो जाएगी सिफत, और उससे पहले अलिफ लाम वाला इसम हो जाएगा मौसूफ। अच्छा, ये तो मुझे बात समझ आ गई। अब मैं अल्लज़ी की अरबी हालत कैसे पहचानूं, आप देखेंगे अल किताबू है या अल किताबा है या अल किताबी है, अल किताबी है तो मेरा अल्लज़ी भी मजरूर है। ओके, ये सबसे फर्स्ट कैटेगरी थी। सेकंड कैटेगरी थी, सेकंड कैटेगरी है मुदाफ इलैह बनना। कैसा मुदाफ इलैह बनना, और फॉर एग्जाम्पल किताबुल्लज़ी है, किताबुल्लज़ी, ओके जो की किताब, वो जो की किताब। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा आप पहचाने, अल्लज़ी मेरा इसम मौसूल है। ओके, अल्लज़ी मेरा इसम मौसूल है। अब किताबू पे क्या अलिफ लाम है या तनवीन है, आप देख रही है कि कुछ भी नहीं है, ना अलिफ लाम है ना तनवीन है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये मेरा हो गया मुदाफ। अच्छा, तो उसके बाद मुदाफ इलैह क्या है, मेरा अल्लज़ी है। तो अब मैं अल्लज़ी की हालत को क्या बोलूंगी गर्ल्स, बोलिए, अल्लज़ी की हालत को मैं क्या बोलूंगी कि वो मजरूर हुआ हुआ है। वेरी गुड, क्यों मैं मजरूर बोलूंगी, क्योंकि
یہ مضاف ہے اور یہ میرا مضاف الیہ ہے، اسی لیے وہ مجرور ہوا ہے. اوکے اس چیزوں کو یاد رکھیے گا. تھرڈ ون کیٹیگری ہماری جو ہے وہ ہے اوکے. تو سیکنڈ والی چیز یہ ہے کہ وہ مضاف الیہ بنا ہو. تھرڈ والا ہے کہ اس سے پہلے حرف جر آئے تو وہ مجرور ہو جاتا ہے. آپ کو تو آبویسلی وہ پتا چل جائے گا، بہت ہی آسان ہے. للذی جیسا کہ ہم دیکھیں علی الذی ہوتا ہے، اوکے، جو پر، اس طرح سے اس کا میننگ آ جائے گا اور وہ الذی یہاں پر مجرور ہو جائے گا. آپ کو سمجھ آ جائے گا کیونکہ وہ حرف جر وہاں پر موجود رہے گا. اوکے ناؤ ان سب چیزوں کو جو ہے یعنی کہ آپ لوگ غور کریے گا قرآن جب آپ پڑھ رہی ہیں کہ اسم موصول آیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، اس سے پہلے کیا ہے، ان سب چیزوں کو غور کریے. اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو مجھے سینڈ کریے گا انشاءاللہ. نیکسٹ ہماری کیٹیگری ہے اگر مبتدا ہو تو وہ رفع میں ہوتا ہے، اگر وہ خبر ہو تو بھی وہ رفع میں ہوتا ہے. اگر مبتدا ہو تو وہ الذی شروع میں آ جائے گا، اور اگر وہ خبر بنا ہوا ہے تو کیسا بنے گا؟ خبر کب بنے گا؟ اسم موصول خبر اسم موصول سے پہلے اگر اسم اشارہ ہو، اوکے، ہذہ ذالک تلک، یہ سب سارے مثنی جمع رفع یعنی کہ واحد مثنی جمع کچھ بھی آ جائے اس سے پہلے، یا اسم ضمیر ہو، اوکے، جو ہوا ہما ہم والے ہیں وہ سارے. اور اگر اسم علم ہو، معرف یعنی کہ پراپر ناؤن جو ہو وہ اگر ہو تو آپ کا اسم موصول یہ ہو جاتا ہے خبر، اور خبر کی پراپرٹی بھی یہ ہے کہ وہ حالت رفع میں ہی ہوتا ہے. اوکے تو ہم نے دیکھ لیا رفع نصب جر کس طرح سے ہوگا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہو انشاءاللہ. اوکے تو میں آپ کو جو ہے نا انمیوٹ کرنے کا آپشن دیتی ہوں. سب سے پہلے غوثیہ آپ آئیے اور سب جی سے السلام پہلی آیت علیکم. کو پڑھیے گا. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم. جی صراط پہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں. صراط مبتدا ہوگا، الذین خبر. صراط مبتدا کیسا ہوا؟ اس پہ الف لام بھی نہیں ہے اور نہ تنوین ہے، تو یہ مضاف ہوگا یہ. سوری. ویری گڈ. میں مبتدا بولے اور تو آپ یہ بہت ڈر گئی تھی کہ اور آپ کو کچھ الذین سمجھ نہیں ہے. مضاف الیہ ہو. ویری گڈ. جب یہ مضاف اور مضاف الیہ ہو گیا ہے تو مجھے بولیے کہ الذین جو ہے کیا یہ اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ جر میں ہوگا، حالت جر میں ہوگا کیونکہ وہ اس میں مجرور ہے. سوری، وہ مضاف الیہ ہے، اس لیے وہ مضاف الیہ ہمیشہ اس کی کی پراپرٹی ہوتی ہے مضاف الیہ حالت جر میں. اوکے الذین واحد ہے، مثنی ہے، جمع ہے، کیا ہے؟ الذین جمع ہے، مذکر جمع. اب کیا اس کا ترجمہ کر سکتی ہیں آپ؟ وہ سب لوگ. اوکے صراط الذین کا ترجمہ کریے. صراط. الذین صراط. تو وہ سب جو ہو گیا. جی. صراط الذین کیسا؟ صراط کا مطلب کیا ہے؟ راستہ. راستہ، سیدھا. اوکے اب کتاب اور حامدن ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ حامد کی کتاب. حامد کی کتاب. اب کی کا کے لگا رہے ہیں ہم ترجمے جی. میں، تو اب بنائیے ایسا ریورس کریں گے نا. اب سب سے پہلے حامد کی اچھا، کتاب بولے تو وہ سب جو سیدھے راستے پہ. نہیں وہ سب سیدھی جو راہ پر. سیدھے راستے پر کیسا؟ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ پہلے حامد پھر کی کتاب بول رہے. پہلے اس کا ترجمہ کیا ہے بولیے الذین کا؟ الذین وہ سب جو. وہ سب جو کی کا. اب صراط راستہ ہے نا، تو کا راستہ. اردو میں آتا کا بولتے ہیں ہم کو، اس کو مذکر وہ بولتے سب جو ہیں. کا راستہ. کا وہ سب راستہ. جو مذکر کا راستہ. راستہ.
ओके, वेरी गुड। अब सिलतुल मौसूल क्या है यहाँ पर, ये वाला? लजीना सिलतुल मौसूल है, उसके बाद आने वाला अच्छा, अल्लज़ीना सिलतुल मौसूल लजीना कैसा? इसमें मौसूल है, लजीना इसमें मौसूल है, सिलतुल मौसूल अनमता नहीं। ओके, क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं सिलतुल मौसूल की? अब या तो जुमले इस्मिया, या तो शिबुल जुमला, या जुमले फिलिया। वेरी गुड, माशाल्लाह। अब बोलिएगा, आपको कुछ समझ आ रही है यहाँ पर? अलैहिम तो हर्फ जर, और उसमें वो है, क्या बोलते हैं, जमीर अटैच। हम्म। ये अलैहिम तो अला, तो और हर्फ जर में आएगा, और पर और हिम उसमें साथ जमीर अटैच है। हाँ, वो ये हो गया। सिंपल जुमला है। हम्म। ये है सिर्फ शिबुल जुमला। अब अनामता को छोड़ दिए ना, क्या है आपको ये जुमलतुल इस्मिया दिख रहा? अमता जुमलतुल तो, और इस्मिया के लिए, जुमलतुल इस्मिया के लिए क्या शर्त है कि इसम से शुरू होना हो कोई? क्या ये इसम से शुरू अनामता होना आपको है। इसम दिख रहा? अनमता मीनिंग वालों में मुश्किल नहीं, है ये। ये इसम नहीं है। ओके, इसम जी नहीं है, ये जुमलतुल फेलिया है। ओके, अब ये जुमलतुल फेलिया के बारे में हम नहीं पढ़े तो इट्स ओके। लेकिन आपको पहचानना चाहिए कि ये इसम है या नहीं है। इसम कैसा पहचानेंगे आप? इसम के कैसे पहचानेंगे? या तो अलिफ लाम हो, तनवीन हो, ये सबसे इजीएस्ट पहचान है इसम की। उसके बाद या इशारा हो, ये भी आ सकता है एज मुब्तदा, और दमीर जो हमारे हैं हुआ हुमा हुम, वो वाले भी आ सकते हैं, या फिर इसम आलम हो, किसी का नाम हो, ये भी नहीं आया। तो ये सब चीजें नहीं है, तो मतलब ये क्या हो गया, फेल है। इसमें ओके, अब यहाँ पर सिलतुल मौसूल ये अनामता से स्टार्ट हो रहा। ओके, तो मैं इसके बाद वाला ये जो वर्ड है ना, इसको देखूंगी कि वो क्या है। जी ठीक है, मैं ये नहीं करूंगी जी कि यानी कि मैं शिबुल जुमला पे नहीं जा सकती, सबसे पहले अलैहिम पे नहीं जा सकती, इसको छोड़ के। जी आपने इसको पहचान लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। लेकिन मैं अनामता को छोड़ के अलैहिम पर नहीं जा सकती। ठीक नहीं है ना? जा। क्योंकि अगर मुझे डिसाइड करना है कि ये इस्मुल जुमलतुल इस्मिया है या फेलिया है, या शिबुल जुमला का खाली फॉर अनामता नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल अलैहिम होता, तो हम यहाँ पर इसको बोलते कि वो शिबुल जुमला है। ठीक है। फिर अनमता को कब जुमले इसमें फैल जाए। हाँ, क्योंकि वो फेल है एक, और इंशाल्लाह हम फैल। जब आएगा फेल के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, जज़ाक। भैया की सिस्टर आबिदा, आप आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम, नेक्स्ट करिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द। क्योंकि अलिफ लाम लगा हुआ है उससे पहले, तो ये होगा कहाँ पर अलिफ लाम लगा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह। अलिफ लाम किसको लगा हुआ है? जी अलिफ लाम तो हम्द को लगा हुआ है, ओके, तो वो यहाँ पर क्या हो गया? तो सिफत होगा ना। नहीं नहीं, यहाँ पर देखिए, आपको बोल अगर अच्छा, इसम मौसूल से पहले वाली चीज देखेंगे या उसके और पहले वाला चीज देखेंगे? हम क्या पढ़े थे? इसमें मौसूल से पहले वाली चीज देखी। हाँ, तो मौसूल से पहले यहाँ पर क्या है आयत में, इस आयत में? जी लिल्लाहिल्लज़ी, हाँ, लिल्लाह। लफ्जुल इस्मुल जलाला है ना, जी अल्लाह जी सुब्हानहू व तआला का जी। नाम है। तो तो अब ये होगा, अलहम्द की बात कहाँ से आ गई? तो फिर लिल्लाहिल्लज़ी, तो फिर लाम की वजह से अल्लाह मजरूर होगा, इसमें जलाला हाँ, मजरूर होगा। वेरी गुड। और अल्लज़ी भी है ना। हाँ, तो अब यहाँ पर अल्लज़ी की हालत क्या है? तो वो भी इसमें भी मजरूर होगा, क्यों आपने इसको मजबूर किया? क्योंकि क्या रीजन क्या है कि आपने इसको मजबूर किया? क्योंकि मजरूर के बाद आने वाला ऐसा अल्लज़ी। कोई रूल है कि कोई अगर ये सब मजरूर हो जाए तो उसके नहीं बाद नहीं आने नहीं वाला भी सब मजरूर हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं। तो लिल्लाही तो है ना मजरूर हुआ, और अल्लज़ी कौन सी हालत में है, ये उसमें सोचिए, हमने जो सारी कैटेगरीज पढ़ी उसमें से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम कौन सी चीज को फॉलो करता है? अल्लाह इलाह प्लस अलिफ लाम
प्लस इलाह है ना, तो जी मुअर्रफ बिल्लाम वाला इसम हो गया, तो ये क्या हो जाएगी? मारूफ बिल्लाम होगा तो इसे कटे बस सिफत छोड़ जाएगा। क्या बोल रहे हैं आप? सिफत सिफत छोड़ सिफत, वेरी गुड। ये हो जाएगा अल्लज़ी सिफत, सिफत। जी और इस्मुल जलाला हो जाएगा मौसूफ। जी और अब यहाँ पर सिफत की प्रॉपर्टी क्या है कि वो कॉपी कैट एग्जैक्टली जैसा मौसूफ की अरबी हालत होती है वैसा सिफत होता है ना। जी तो जी अब यहाँ पर क्योंकि इस्मुल जलाला की हालत क्या है, मजरूर, जर में है, मजरूर। तो जी इसीलिए अल्लज़ी भी यहाँ पर जर मजरूर। में है। अच्छा, अल्लज़ी वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? वाहिद है, वाहिद मुज़क्कर। तो आप इसका तर्जुमा करिए, इस मौसूफ सिफत की तरह करिए। ओके जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, मैं शुक्र। इसका तर्जुमा कर देती हूँ। वो है जो अल्लाह, वो जो अल्लाह। ओके, क्योंकि हम गलती नहीं कर सकते। वो जो अल्लाह मौसूफ सिफत के हिसाब से, अगर ये जैसा कि सिरातल लजीना मुदाफ मुदाफ इलैहि बना था, तो हम क्या बोले, वो सब जो का रास्ता, का की के का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो मुदाफ मुदाफ इलैहि बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर मौसूफ सिफा है, तो हम यहाँ पर वो जो अल्लाह है। अब अल्हम्दु रफा में क्यों है? क्योंकि वो आपने तो अब ये सब सही बोल दिया कि अल्लज़ी यहाँ पर जर में है क्योंकि इस्मुल जलाला जर में है। अब ये ली प्लस अल्लाह है, दोनों को मिला के लिल्लाह इस तरह से लिखा जाता, और ये अल्लज़ी हो गया आपका इस्म मौसूल, उसके आगे वाला सिलतुल मौसूल होगा, और अल्लज़ी की हद से हम पहला पहचाने की वो अल्लज़ी मजरूर है क्योंकि वो सिफा बना हुआ है इस्मुल जलाला की। ये समझ आ गई, यहाँ से तो बात समझ आ गई। लेकिन ये अल्हम्दु के बारे में मैं पूछ रही हूँ। अल्हम्दु में अलिफ लाम लगा हुआ है हम्द के साथ। देखिए, जो मैं पढ़ाई इस्मुल मौसूल से पहले, मतलब बिल्कुल पहले फर्स्ट चीज को ही आप देखेंगे, उससे जी पहले वाली इस चीज को आप नहीं देख सकते। ओके, आपको जी अगर इस्मुल मौसूल के बारे में डिसाइड करना है तो बिल्कुल इस्मुल मौसूल से पहले वाली चीज, यहाँ पर लिल्लाही था, अब हमने लिल्लाहि उसको हमने देख लिया। देख लिया और आपको उस चीज की समझ आ गई। लेकिन अब मेरा सवाल है अल्हम्दु के लिए, अल्हम्दु क्या है? देखिए आप, कोई इसम है? सबसे पहले तो देखिए इस तरह से, क्या वो इसम है या हर्फ है या क्या है, फेल है? श्राविदा, जी हाँ बोलिए, इसम है वो या क्या है? इसम है। वेरी गुड, इसम है। क्या वो अलिफ लाम के साथ है या नहीं है, तनवीन के साथ है? अलिफ लाम के साथ है, तनवीन नहीं है इस पर। हाँ, शुरू में, जुमले के शुरू में आ रहा है, अलिफ जी लाम के साथ वाला इसम है, तो क्या होता है वो जुमले के शुरू में? जुमला इस्मिया होता है। हाँ, जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया में सबसे पहला पार्ट क्या होता है? मुब्तदा। मुब्तदा। मुब्तदा की खासियत क्या है कि वो अलिफ लाम के साथ आएगा और वो हालत रफा में होगा, यानी कि वो मारफा होगा और वो मरफू होगा, दोनों भी जी चीजें उसने फॉलो की, तो ये जी मुब्तदा है। अल्हम्दु लिल्लाही शिबुल जुमला है। ओके, जी जी शिबुल जुमला खबर है, ठीक है, लिल्लाही। अब अल्लज़ी इस्म मौसूल है। अब मुझे सिलतुल मौसूल के बारे में बोलिए, क्या है? खलक़स समावाति वल अर्ज़ सिलतुल मौसूल है। ये सिलतुल अगर मौसूल है, वेरी गुड। ये अगर या तो ये जुमला इस्मिया हो सकता है या सिबु जुमला हो सकता है, जुमले फेलिया हो सकता है, तो जुमले फेलिया है। जुमला फेलिया, वेरी गुड, माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरन, बारकल्लाहु फीक। बस। फरहीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बाजी। चलो नेक्स्ट करिए। वसअलहुम है वो आप, हाँ, वसअल, वसअलहुम अनिल क़रियति अल्लती कानत हादिरतल बहरी। यहाँ पर अल्लती सिंगुलर फेमिनाइन इस्मुल मौसूल है, ओके, और
क्या हालत है इसकी? रफाना सब्र, क्या हालत है? अल्लती बना हुआ, क्या बना हुआ है? जी, उससे पहले के जो है वो सिर्फ हम्म, उससे पहले वाला वर्ड जो है अलिफ लाम से शुरू होगा वो, तो इसीलिए वो ओके, ये सिफत बना और वो मौसूफ है। वेरी गुड। क्या सिफत बना? अल क़रियती। अल क़रियती सिफत बना है, या आप बोल रही हैं? जी नहीं नहीं, हम क्या बोले कि जब भी हम सबसे फर्स्ट क्या पढ़े कि अगर इससे पहले अलिफ लाम वाला इसम हो तो जी वो जो इसम मौसूल है वो बनेगा सिफत, उससे पहले वाला इसम नहीं। याद है सबसे पहले क्या पढ़ा हमने कि हाँ इसम मौसूल बनेगा सिफत, हाँ 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 से पहले वाला इसम अलिफ लाम वाला इसम नहीं बनेगा, वो तो मौसूफ बनेगा ना। हाँ ओके, तो अब जी। बोलिएगा आप उस आयत के बारे में। तो पहले वाला वर्ड जो है वो मौसूफ है और अल्लती सिफत है। वेरी गुड। और ये क्योंकि हालत जर में है अल क़रियती, तो इस्मुल मौसूल भी जो है मजरूर है। वेरी गुड। अल क़रियती हालत जर में क्यों है? ये क्यों है हालत जर में? आनी लजी उस जो अल क़रियती से पहले आन हर्फ जर है। अन हर्फ जर है, अन हर्फ जर है। आन, जी हाँ। हाँ, तो इतने कंफ्यूज क्यों है? बोलिए कॉन्फिडेंटली कि अन हर्फ जर है। हाँ अन है हर्फ अन, जर है इसीलिए क़रियती मजरूर हुआ। जी ओके, अब जी यहाँ पर मैं अल्लती को मजरूर इसलिए नहीं बोलूंगी कि क्योंकि अन हर्फ जर की वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते। क्या जब वो शुरू शुरू में पढ़ते तो वो समझते कि हर्फ जर का असर उसके बाद वाले इसम पर भी होगा और उसके बाद वाले इसम पर भी होगा, ऐसा नहीं है। हर्फ जर का इसम उसके बाद वाले इसम पर ही होता है बस। अब यहाँ पर अल्लती को आपने मजरूर क्यों कहा? क्योंकि वो सिफत बना हुआ है क़रियती की। जी ओके, इसीलिए ठीक है। और तो इसीलिए सिफत की प्रॉपर्टी क्या है कि वो मौसूफ को एग्जैक्टली अपने तौर पर फॉलो करेगा। अब यहाँ पर मौसूफ क्योंकि हालत जर में है इसीलिए सिफत भी हालत जर जर में। में है। ओके, जी वेरी गुड, माशाअल्लाह। अच्छा, मसाल हम आप नहीं देख सकते क्योंकि हमने अभी फेल के बारे में पढ़ा। ठीक है, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। फ़हीम, बिलकिस, नेक्स्ट करिए आयत। जी नेक्स्ट आयत करिए बिलकिस। ओके। वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़। हम्म, अभी अभी बोलिएगा क्या है ये इस्मुल मौसूल से पहले क्या है, कौन सी हालत में है इस्मुल मौसूल? मैं अभी ज्वाइन करी थी, दूसरी हिफ्स क्लास में थी मैं। अभी ज्वाइन करी। नहीं पता आपको? ओके ठीक है। सिस्टर हिना, आप लोग रेडी रहिएगा, अगर मैं आपको नाम पुकारूं तो फिर जल्दी से आ जाइए। ओके सिस्टर हिना, आप हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इस आयत के बारे में करिए। वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला ना इल्ला या बिलहक़। इल्ला बिलहक़। तो यहाँ पर अल्लती या अल्लती इस्मुल मौसूल, ये हालत जर में है। उसके पहले वाले वर्ड पे अलिफ लाम आ रहा है। हम्म, ओके, हम्म, तो ये
मौसूफ हो जाएगा और अल्लती सिफा हो जाएंगे। ओके, तो अब अल्लती की अरबी हालत क्या है? हाँ, लेकिन इसको तो अल्लती की यहाँ पे तो कसरा मजरूर है। कौन मजरूर है? अल्लती अल्लती के ता के नीचे के कसरा को देख के हम बोलेंगे कि अल्लती मजरूर है, ऐसा है क्या? अच्छा, ता के नीचे है। ऐसा है क्या सिस्टर हिना? हम जब पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा कि जो वाहिद और मुसन्ना वाले होते हैं ये तो फिक्स्ड है ना, ये मबनी है ना। ओके जी, सॉरी। तो ये तो मबनी है, तो फिर जब हम इसको कैसे पहचानेंगे कि अल्लज़ी के जाल के नीचे ये कसरा को देख के मैं मजरूर बोलूंगी? क्या ऐसा मैं बोलूंगी? यस और नो? नो, नो, व्हाई नो? नॉट ऑन जाल। तो इसी और तरह क्या मैं अल्लती के ता के नीचे के कसरा को देख के बोलूंगी कि क्या ये मजरूर है? नहीं, नॉट ऑन ता या ऑन द नेक्स्ट लेटर, या नॉट ऑन हरका के पे नहीं, नॉट ऑन एनी नॉट लेटर। एनी हरका, या नॉट ऑन एनी लेटर, नॉट ऑन एनी हरका, क्यों? व्हाई where लाइक they दैट? stand, Because they are the mabni. I cannot position, say yeah. by dunya, for example, it dunya by looking at the alif और मूसा अगर है इस तरह से, by looking at this कि ये नसब है जर है, मुझे नहीं, उससे पहले वाली चीजें देखनी होगी। अब अल्लज़ी ना है, नून के ऊपर फता है, तो मैं क्या इसको मंसूब बोल दूंगी? नहीं, हाँ, तो इसी तक क्यों पढ़ रहे हैं हम ये सब चीजें कि वो हरकत रसा नसब नसब में कब जाता हाँ, है, उनके जर में कब पहले जाता वाली है, चीज का। क्योंकि उससे पहले जी वाली चीजें हमें देखनी होगी। जी। तो पहली अब वाली मुझे चीज, बोलिए। हम्म तो पहली वाली में अलिफ लाम, अलिफ लाम कैसे बोलेंगे, क्योंकि नून, अलिफ लाम पढ़ा नहीं जाएगा, लाम पढ़ा नहीं जाएगा, तो फिर अलिफ लाम कंसिडर करेंगे उसको पहले ऑब्वियसली वाले में। चाहे आप उसको रीड करो या ना करो, यहाँ पर है अलिफ लाम। ओके, अच्छा, हम्म। तो अब फिर इसम वो मौसूल से पहले कौन सा इसम आया? देखिए, बोलिए मुझे, इसम मौसूल से पहले कौन सा इसम आया? अलिफ लाम के साथ इसम है या बगैर अलिफ लाम के साथ है, या कोई इसम मजरूर बगैर बगैर हर्फ बगैर बगैर अलिफ लाम के साथ है? विदाउट अलिफ लाम है, अलिफ लाम नहीं है मौजूद उस पर? तकुलू आप बोल रही है? नहीं, तक़तुलू क्यों देख रही हैं आप? उससे ये हाँ नहीं देखना हमें, इसम मौसूल से इमीडिएट पहले वाला इसम कौन हाँ, सा है? अन नफ्सा। ओके, अन नफ्सा, ये क्या अलिफ लाम के साथ है या नहीं है? जी है। ओके, अलिफ लाम के साथ है। तो जब ये अलिफ लाम, जब इसम मौसूल से पहले कोई अलिफ लाम वाला इसम आ जाए तो इसम मौसूल क्या होता है? सिफा। सिफा होती है। उससे पहले वाला हम्म, इसम क्या हो जाता है? मौसूफ। मौसूल। अब यहाँ पर सिफा का एराबी हालत क्या होगी? मौसूफ सिफा का रूल मंसूब, क्या है? मंसूब, वेरी गुड। क्यों मंसूब कहा आपने? क्योंकि मौसूफ का एराबी हालत मंसूब है। वेरी गुड। यहाँ पर जो अलिफ लाम वाला इसम है उसके एंडिंग क्या है, उसकी अरबी हालत क्या है कि वो फतह के मंसूब, साथ है, वो फतह मौसूफ के साथ। फतह के साथ है। अब यहाँ पर अल्लती, मैं ये ता के नीचे कसरा को नहीं देखूंगी। ओके, मैं जी देखूंगी कि ये क्या बना हुआ है इसम मौसूल। क्या ये हम्म, मुदाफिले बना हुआ है, या ये सिफत सिफा बनी हुई, या फिर ये इसम जर बना हुआ है, या फिर ये मुब्तदा बना हुआ है, या फिर ये खबर बना हुआ है? ये क्या बना हुआ है जुमले में, उसके हिसाब से मैं इसको डिसाइड करूंगी। जी ओके, अब मुझे ये हाँ। बोलिए, अल्लती मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुअन्नस। क्यों मुअन्नस इस्तेमाल किया गया? अम, सुअला तक़तुलू। ऊपर वाले में तो दिख रहा है कि करियती, जी, करियती ता मरबूता वाला इसम है, मुअन्नस इसम अलामत है, है उसमें, अलामती मुअन्नस है, तो आपको अलामत अल्लती मुअन्नस है। इस्तेमाल हुआ। अब यहाँ यहाँ पर नफ्स है, यहाँ नफ्स, नफ्स इज कंसिडर्ड एज
because Arab said so. समाई मुअन्नस है वो, समाई इसीलिए मुअन्नस है इसलिए अल्लती का इस्तेमाल किया अल्लती। गया। ओके, अच्छा आप मुझे क्या हरम अल्लाहु, इसके बाद अल्लती के बाद क्या आता है, उसको क्या कहते हैं? इसम मौसूल के बाद जो आता है उसको क्या कहते हैं? सिलतुल मौसूल। ओके, सिलतुल मौसूल की कौन सी कैटेगरीज है? वो जुमला इस्मिया हो सकता है, या शिबुल जुमला हो सकता है, या जुमलतुल फेलिया हो सकता है। ओके, यहाँ पर क्या है? 3 यहाँ पे ये हरम इज हाउस, हरम नहीं, ऑफ अल्लाह। हर्रम, हर्रम। हर्रमा मीनिंग इज हर्रमल्लाहु। सब्बह युसब्बिहु, हर्रम ये एक फेल है। ओके, ओके बाब तफईल से फेल है ये, तो जुमलतुल फेलिया है ये। जुमला ओके, अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है फेल से तो ये क्या हो गया? जुमलतुल फेलिया। सिलतुल मौसूल आपका क्या हो गया? जुमलतुल फेलिया हो गया। ओके, चलिए माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकी, जज़ाकिल्लाह खैर। आईफोन से कोई है, पता नहीं, नाम लिखिए, बोलिएगा आपका, सिस्टर जो भी है आप। ओके, जमीला, जमीला, मुहसिना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नेक्स्ट आयत को देखिएगा। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तखियन। अल जन्नतु मौसूल है। अल क्या है? जन्नतु मौसूल है। मौसूल है। अल जन्नतु अल मौसूल है। मौसूल या मौसूफ कहना चाह रही हैं आप? मौसूफ। हाँ, देखिए एक लफ्ज में कितना फर्क हो गया। इस्मुल मौसूफ मौसूल अलग होता है, मौसूफ अलग चीज है। ओके, मौसूफ। ओके, अल जन्नतु मौसूफ है क्योंकि अल्लती सिफत हो गई। ओके, ओके, अल्लती फेमिनाइन, सिंगुलर फेमिनाइन है, वाहिद फेमिनाइन है। ओके, वाहिद। तो इस्तेमाल किया गया क्योंकि जन्नत जन्नत के फेमिनाइन जेंडर है। वेरी गुड। अब मुझे अरबी हैत बोलिए, इस्मुल मौसूल अल्लती की नसब इसमें रफा में है। मैं रफा में है। क्यों रफा में कहा रफा आपने? क्योंकि मौसूफ की हालत भी रफा में है। वेरी गुड, अल जन्नतु हालत रफा में है। वेरी गुड। रफा में। यहाँ पर मेरा इस्मुल मौसूल हालत रफा में हो गया क्योंकि इससे पहले अलिफ लाम वाला इसम आया है और रफ बिल लाम वाला इसम आया है अल जन्नतु। तो अल जन्नतु यहाँ पर मौसूफ हो गया, अल्लती उसकी सिफा हो गई, और जैसा मौसूफ अरबी हालत में जैसा होता है वो सिफा को फॉलो करता है, सिफा उसको फॉलो करती है। तो क्योंकि जन्नतु रफा में है इसीलिए रफा में, अल्लती मेरा इस्मुल मौसूल भी रफा में ही है। रफा में। यस, ओके, अब यहाँ पर यस मैम। सिलतुल मौसूल के बारे में बोलिए, आपको कुछ समझ आ रहा है क्या? ये आपको क्या दिख रहा है? सिलतुल मौसूल मौसूल क्या 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 बोलना है मैम? सिलतुल मौसूल के क्या क्या कैटेगरीज है? सिलतुल मौसूल क्या क्या बन के आ सकता? सिलतुल मौसूल वो जुमला इस्मिया बन सकता है, शिबुल जुमला बन सकता है, या जुमलतुल फेलिया बन सकता है। ओके, तो अब यहाँ पर सिलतुल मौसूल कहाँ से शुरू हो रहा इस आयत में? वो नूरिसु मिन वेरी गुड। इबादीना मन काना तखियन। अच्छा, तो जब आपने कहा नूरिसु से वो शुरू हो रहा है, तो क्या ये आपको जुमलतुल इस्मिया दिख रहा कि नहीं? जुमलतुल इस्मियाई
क्या ये इसम दिख रहा है नहीं, आपको नूरिसु? नूरिसु में ये बात ये ये इसम नहीं, नहीं है, ये फेल है। ओके, जुमतुल फेल या फेल है। फेल है। ओके मैम, नूरिसु, ओके ओके, नूरिसु। अच्छा मुझे ये बोलिएगा मोहसिना, आपकी ये इसमें आपको इसके अलावा कोई और मुरक्कब दिख रहा है आपको शुरू में? इसको आप क्या कहेंगे, ये कोई मुरक्कब है क्या? तो ये, हाँ मैम, कौन सा मुरक्कब है? इशारा, मुरकब इशारी, मुरक्कब इशारी, वेरी गुड। इशारी। क्यों आपने इसको मुरक्कब इशारी कहा? तिलका आ रहा, हाँ, तिल का इशारा, इशारा आया, और उसके बाद वाला इसम की क्या खास बात है? मुशा मुशायरुन इलैह। मुशारुन इलैह की क्या यहाँ पर क्या खास बात, कब आप उसको मुशारुन इलैह बोल सकते हैं? और अगर यहाँ पर तिल का जन्नतुन होता तो क्या आप उसको मुशारुन इलैह बोलते? नहीं, वो अलिफ लाम के साथ आना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। तो आपको बोलना चाहिए कि यहाँ पर इशारा आया है और उसके इशारा बाद वाला इसम जो है अलिफ लाम के साथ है, इसलिए मैं साथ इस मुरक्कब को मुरक्कब वो इशारी बोल रही हूँ। मुरकब इशारी। ओके, ठीक है, ओके, वेरी गुड, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक। थैंक यू। देखिए यहाँ पर हमने जो देखे एग्जाम्पल्स, इसमें अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन, ये सारे एग्जाम्पल्स मौसूफ सिफा के थे और एक मुदाफ मुदाफ इलैह का था जो कि था सिरातल लज़ीन। ओके तो अब यहाँ पर आप गौर करिए कि जो हम पढ़े सबसे फर्स्ट कैटेगरी की इस्मुल मौसूल के बाद अलिफ लाम वाला इसम आ रहा है। ओके, और जब इस्मुल मौसूल के से पहले, सॉरी नॉट बाद, से पहले, इस्मुल मौसूल से पहले अलिफ लाम वाला इसम आ रहा है, और वो जब ऐसा होगा, अलिफ लाम कॉमनेस्ट थिंग है ये कि इस्मुल मौसूल से पहले अलिफ लाम वाला इसम आना, और ऐसा होगा तो आंख बंद करके आपको बोलना है कि ये इस्मुल मौसूल आपकी सिफत है, से पहले वाला मौसूफ है, मौसूल नहीं, मौसूफ। ओके, मौसूफ है, और जो अराबी हालत मौसूफ की होगी वही अराबी हालत आपके सिफत की होगी। अब यहाँ पर देखिए अल्लती, ऐसे ही ये आयत नहीं चुन ली गई, अल्लती 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 तीन अल्लती है, लेकिन मैं अब यहाँ से अगर आपसे पूछी कि ये अल्लती की पोजीशन क्या है, अराबी हालत क्या है, आप बोलेंगे जर में है, क्योंकि करियती जर में है। अगर मैं नेक्स्ट वाली आयत, इस आयत की बात करूं, यहाँ पर अल्लती की अरबी हालत मुझे बोलिए, तो आप बोलेंगे कि ये मंसूब है, नसब में है। क्यों ये मंसूब है? क्योंकि नफ्सा मंसूब है। तीसरी आयत में सेम अल्लती है, लेकिन यहाँ पर ये अल्लती की अरबी हालत रफा में है। क्यों रफा में है? क्योंकि जन्नतु हालत रफा में है, इसीलिए। ओके, ऐसे ही चीजों को देख के डिसाइड कर लेना। हमको देखना है कि इस्मुल मौसूल से इमीडिएट पहले क्या आ रहा है। ओके, क्या वो अलिफ लाम वाला इसम है? ओके, अलिफ लाम वाला इसम है तो वो बन जाएगी, इस्मुल मौसूल हमारा बन जाएगी सिफत, और उससे पहले वाला इसम बन जाएगा मौसूफ। और मौसूफ की जो अराबी हालत होती है, यानी कि चार चीजें, रफा, नसब, यानी कि क्या बोलेंगे हम इसको, जिन्स, आदद, वुसअत और एराब, जो भी मौसूफ का होगा, ये चार चीजों में से एग्जैक्टली सेम कॉपी करेगी आपकी सिफत। क्योंकि यहाँ पर करियती देखिए वाहिद है, अब मैं आपसे हम उसको इस तरह से देखेंगे, करियती वाहिद है, यस वाहिद है। अल्लती वाहिद है, जी हाँ वाहिद है। जिन्स में देखिए, जिन्स में करियती क्या है, मुअन्नस है या मुज़क्कर है? मुअन्नस है, फीमेल है। करियती मुअन्नस है या मुज़क्कर है? फीमेल का सीगा इस्तेमाल किया गया, अल्लती, है ना। जिन्स, आदत, वो साथ अलिफ लाम के साथ है क्या करियती? यस, अलिफ लाम के साथ है। अल्लती मारफा इसम है अलिफ लाम के साथ। ओके, एराब, जिन्स हमने देख लिया, वसत हमने देख ली, एराब हमने देख लिया, अदद हमने देख लिया, अब बचा एराब। एराब का मतलब रफा नसब जर क्या है, तो करियती क्योंकि मजरूर है इसलिए अल्लती भी मजरूर हो गया है, रफा में जर में हो गया। ठीक है, ये जर है तो ये भी जर है। इस तरह से मौसूफ और सिफा का होता है। ठीक है, और जो हमने एग्जांपल देखा यहाँ पर सिराता लजीना, जो कि हम कॉमन पढ़ते रहते हैं सूरह फातिहा, सिराता एक इसम है, सिरातुन होना चाहिए था उसको, लेकिन सिराता हुआ, वो क्यों हुआ, वो उसकी रीजन है।
लेकिन अभी तक वो हमने नहीं पढ़ी थी वो क्या रीजन है। लेकिन आपको ये तो पता है कि अगर सिरातुन है तो या तो अस्सिरातु होना चाहिए था उसको। यहाँ पर अलिफ लाम भी नहीं लगा हुआ, ना तनवीन लगी हुई, तो मतलब ये बना है मुदाफ। ओके। और जब हम तर्जुमा करेंगे इसका तो अल्लज़ीना वो सब जो का रास्ता, ऐसा हम तर्जुमा करेंगे मुदाफ मुदाफ इलैह के हिसाब से। ओके। और जब आप मौसूफ सिफत की, अब यहाँ पर मैं वो जो की बस्ती नहीं बोल सकती हूँ। यहाँ पर अल्लती क़रियती, क़रियती का मतलब है बस्ती, वो जो की बस्ती में नहीं बोल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मौसूफ सिफा है, तो वो जो बस्ती उसके हिसाब से मुझे तर्जुमा करना होगा। वो जो बस्ती, ओके, वो जो नफ्स, वो जो जन्नत, वो जो की जन्नत, रॉन्ग तर्जुमा बिल्कुल चेंज कर दिया आपने। वो जो की जन्नत अगर बोले तो वो मुदाफ मुदाफ इलैह हो गया, लेकिन क्या ये मुदाफ मुदाफ इलैह है? नहीं है, ये तो मौसूफ सिफा है, तो वो जो जन्नत, इस तरह से इसका आएगा। ओके। अगर आपको ये समझ नहीं आई तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और फिर से सुनिए क्लास को इंशाअल्लाह, ताकि आपको और आसानी से समझ आ जाए। ठीक है। ओके। और मैं कुछ आपको दिखाना चाह रही थी। हम्म हम्म ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है गर्ल्स? चैट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, मुसरत, सिस्टर मुसरत आप आइए। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। पहली आयत पढ़िए। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। ओके, अब मुझे इसमें बोलिए कि इस ये जो इसम, ये जो है ये वाहिद है, इसम मौसूल कौन सा है यहाँ पर? इसम मौसूल अल्लज़ी, हम्म उससे पहले अरायता है। अरायता इज नॉट स्टार्टिंग विथ अल, तो ये हो गया। और इसकी तनवीन भी नहीं, तो ये मुदाफ हो गया, अल्लज़ी मुदाफ इलैह हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये रअयता फालता के वजन पे फेल है, ये कुछ और चीज है, अभी हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा, इसीलिए मैं अभी उस अरायता, अरायता रअयता इज देखा। रआ से फालता के वजन पे ये हो गया फेल, तो अल्लज़ी हाँ जी, यहाँ पर कुछ और चीज हो जाएगी। मैं सिर्फ आपसे पूछ रही थी कि अल्लज़ी वाहिद है या जमा है या क्या है? वाहिद वाहिद है, वाहिद मुज़क्कर। वेरी गुड। ओके। अब यहाँ पर ये इससे पहले ये कुछ और चीज है, जब हम जुमलतुल फ़ेलिया पढ़ेंगे ना तो जी, उसके बारे में हम जब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कि यहाँ पर अल्लज़ी क्या बना हुआ है। ठीक है। ओके। अब मुझे ये बोलिए कि सिलतुल मौसूल के बारे में बोलिए, इसका सिलतुल मौसूल क्या दिख रहा सिरतुल मौसूल इसका युकज़्ज़िबु बिद्दीन। है? ओके, युकज़्ज़िबु इज फेल, तो ये जुमलतुल फेलिया है। वेरी गुड, ये जुमलतुल फ़ेलिया है। अब बिद्दीनी, नी क्यों हुआ? बिद्दीनी, युकज़्ज़िबु बिद्दीन, बिकॉज ऑफ बी, हर्फ जर, हर्फ जर बा। बा, या ओके। जी जी कभी भी हम इसको ली नहीं बोलेंगे और इसको बी नहीं बोलेंगे, हर्फ जर बा और हर्फ जर बा, लाम, हर्फ जर काफ, हर्फ जर वाव, ऐसे बोलेंगे। अच्छा, ओके। तो बिद्दीनी ये जो है शुबुल जुमला हुआ है ना, हर्फ जर बा की वजह से दीनी मजरूर हुआ। ओके, जी वेरी गुड, माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। और इसके बाद वैया की। सिस्टर नजमा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नेक्स्ट आयत में देखिए, आपको कोई इस्मुल मौसूल दिख रहा है? जी बाजी, अल्लज़ी। ओके, अल्लज़ी। अब इसकी हालत क्या है? कौन सी इसकी अराबी हालत क्या है, मुझे बोलिए।
नसब बाजी। नसब क्यों नसब कहा? फज़ालिक उससे पहले वाले इसम पर फतह है ना। क्या है उससे पहले वाला इसम? फज़ालिका। हाँ, तो फा तो पार्टिकल है, उसको छोड़ दीजिए। ज़ालिका, ज़ालिका क्या है? इस्मुल इशारा। हाँ, तो नजमा हमने क्या पढ़ा? मरफू है, वो मरफू है बाजी। कौन मरफू है? ज़ालिका। हाँ, ज़ालिका मरफू है, इसलिए अल्लज़ी मरफू है, ऐसा है? ऐसा है क्या सिस्टर नजमा? ज़ालिका के बाद अल्लज़ी आया तो बदल ना बाजी। बदल होगा? नहीं, मैं आपको क्या बोली पढ़वाते वक्त यहाँ पर जब हम पढ़ रहे थे? फर्स्ट कैटेगरी हमने देखी, सेकंड कैटेगरी हमने देखी, थर्ड कैटेगरी में क्या पढ़े थे हम? बोलिए। ये वाली कैटेगरी क्या थी? इसम मौसूल से पहले अगर इशारा आए या इसम दमीर आए या इसम अलम आए तो ये इसम मौसूल क्या बन जाएगा? नजमा जी क्या बन जाएगा? आप थी क्लास में? जी थी बाजी। खबर। हाँ, खबर। खबर की एराबी हालत क्या होती है? वो रफा में होता है ना। जी तो अब दालिका क्या है? इसम इशारा है या इसम दमीर है? इसम इशारा बाजी। वेरी गुड। तो इसम अलम से इसमुल मौसूल से पहले अगर इसम इशारा आए या इसम दमीर आए या इसम अलम आए तो इसम मौसूल आपका जो है वो खबर हो जाएगी। ओके, तो उस जी आयत में क्या है? खबर है बाजी। कौन खबर है? अल्लज़ी मुब्तदा। ज़ालिका मुब्तदा। वेरी गुड। ज़ालिका मुब्तदा हो गया, अल्लज़ी उसकी खबर अल्लज़ी हो गई। खबर। ओके, अल्लज़ी वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है, क्या है अदद के हिसाब से? वाहिद। वेरी गुड। अब सिलतुल मौसूल कहाँ से शुरू है, कहाँ खत्म है, मुझे बोलिए। यदुल यतीम। सिलतुल ये मौसूल। ओके, सिलतुल मौसूल क्या है? यहाँ पर आपको ये इसम दिख रहा है? नहीं बाजी, ये फेल। हाँ, तो ये क्या है? जुमलतुल फेलिया है। जी ओके, जी बाजी। कंफ्यूजन है नजमा या नहीं? क्लियर है? नहीं बाजी, क्लियर है। फिर से रिपीट करिएगा इस आयत के बारे में। ज़ालिका इस्मुल इशारा है। अल्लज़ी इस अल्लज़ी से पहले अगर इस इशारा है, इसलिए ये अल्लज़ी खबर बना हुआ है। ओके ज़ालिका मुब्तदा है, अल्लज़ी खबर है। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या बोल सकती हूँ कि क्योंकि ज़ालिका रफा में है तो अल्लज़ी रफा में है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ? जी बाजी, दो भी मैच करना है नहीं इसमें। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकती हूँ। ज़ालिका रफा में है तो अल्लज़ी रफा में है, मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि अल्लज़ी खबर बना हुआ है और खबर की प्रॉपर्टी रफा में रहना है। खबर की प्रॉपर्टी क्या है कि वो रफा में होती है, इसीलिए ये हालत रफा में है, मुझे ऐसा बोलना चाहिए। हम कॉपी कैट की चीजें कब फॉलो करेंगे? जब सिफत के केस में अल्लज़ी से पहले अगर कोई अलिफ लाम वाला इसम आए तो वो हो जाएगी इस्म मौसूल हमारा सिफा। जैसे कि हमने देखा, मौसूफ अगर सिफा हो तो ही हम उसको कॉपी कैट करवाएंगे बस। अब यहाँ पर ज़ालिका इसम इशारा का इस्तेमाल हुआ, इसीलिए अल्लज़ी मेरा बन गया खबर। ओके, और खबर की जी प्रॉपर्टी क्या है कि वो कौन सी हालत में होती है? वो हालत रफा में होती है, इसीलिए अल्लज़ी यहाँ पर हालत रफा में है।
میں یہاں پر ایسا نہیں بول سکتی کہ ذالکا رفع میں ہے تو الذی رفع میں ہے، ایسا میں نہیں بول سکتی، ٹھیک ہے؟ ریپیٹ جی کریے آپ نجمہ جو میں بولی. الذی یہاں خبر ہے کیونکہ یہ اسم الاشارہ کے بعد الذی سے پہلے اسم الاشارہ ہے، اس لیے اس کے بعد والا یہ خبر ہوگا. خبر رفع کی حالت میں ہے تو یہ ذالکا بھی رفع ہے. خبر کی پراپرٹی یہ ہے کہ وہ رفع کی حالت میں ہوتی ہے. اوکے، خبر کی یہ چیز ایسی ہے. اوکے، اب میں آپ سے پوچھوں لال رنگ کون سے کلر کا ہوتا تو آپ بولیں گی لال. اورنج کون سے کلر کا ہوتا تو آپ بولیں گی اورنج. اورنج کی پراپرٹی ہے کہ وہ اورنج کلر میں ہوتا ہے. اوکے، ان دا سیم وے خبر کی پراپرٹی یہ ہے کہ وہ رفع میں ہوتا، حالت رفع میں ہوتا، اسی لیے یہاں پر الذی حالت رفع میں ہے. ٹھیک ہے، اور ذالکا کی جی وجہ سے حالت رفع میں نہیں ہے. دونوں چیز میں ڈفرنس ہے. سمجھ رہی ہیں آپ میری بات کو؟ جی باجی، یہ خبر ہے اس لیے رفع ہے. اب یہاں پر جب ہم دیکھ رہے تھے اس موصوف صفہ کے بارے میں، ہم کیا بولے؟ قریتی. ہم کیا بولے کہ یہاں پر قریتی مجرور ہے اسی لیے التی مجرور ہے بولے. اوکے، نفسا منصوب ہے اس لیے التی منصوب ہے بولے. جنتو مرفوع ہے اس لیے التی مرفوع ہے بولے. ہم ان لوگ کو کاپی کیٹ کرا رہے تھے، ایکول اکول اکول. کیوں؟ کیونکہ یہ موصوف صفہ بنے ہوئے تھے. ال ٹھیک ہے، سے آئے سے موصوف سے. اسم الموصول سے پہلے الف لام والے اسم آئے اسی لیے ہم اس کو موصوف صفہ بنائے. اب وہاں پر تو وہ موصوف صفہ نہیں بن رہے، جب وہ موصوف صفہ بنیں گے تب ہی وہ کاپی کیٹ والی چیز کریں گے. لیکن اگر وہ کچھ اور چیز بن رہے ہیں، یہاں جیسے کہ یہاں پر وہ خبر بن رہا ہے، تو یہاں پر ہم نہیں بولیں گے کہ وہ ذالکا مرفوع ہے اسی لیے الذی مرفوع ہے. ذالکا بنا ہوا ہے خبر، اور خبر کی پراپرٹی ہوتی ہے کہ وہ حالت رفع میں ہوتا ہے اسی لیے وہ مرفوع ہے. اوکے، الگ الگ ریزن. اوکے، ٹھیک ہے، سمجھ آئی آپ کو نجمہ؟ جی باجی. اوکے، ویری گڈ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. باجی ایک ہی سینٹینس میں مضاف مضاف بھی آ جاتا ہے، موصوف صفت بھی آ جاتا ہے، اس کی الگ اس کی الگ، اس میں کنفیوز ہو جاتا ہے باجی. ہاں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا آیت میں، ایک آیت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ کو سمجھنا ہوگا اس کے حساب سے ہر ایک کی. اسی لیے تو ہے کہ فاؤنڈیشن جو آپ کا مین ہے نا وہ اسٹرانگ رہنا. آپ کو سب مرکبات کے بارے میں پتا چلے، آپ کو اگر معلوم ہے تو آپ کو آسانی ہوگی پہچاننے میں پھر، ہے نا؟ جی جی باجی. سب کے رولز، آپ کو سب کے رولز پتا ہونا چاہیے. مبتدا کے رول کیا ہے، خبر کے رول کیا ہے، اوکے، ہر جگہ کے رول کیا ہے، اسم مجرور کے رول کیا ہے، اور مرکب اشاری کے رول کیا ہے، اور مرکب توصیفی کے رول کیا ہے. ہر کسی چیز کے آپ کو، اب ہم اسم موصول پڑھے، اسم موصول سے پہلے کیا آتا، اسم موصول کے بعد کیا آتا، سب کے رولز آپ کو معلوم ہونا، جتنا بھی ہم پڑھے. ضمیر میں جی ہم پڑھے، ضمیر دو طرح کی ہے، اٹیچ اور ڈیٹیچ. اٹیچ کیسے بن کے آ سکتے، ڈیٹیچ کیسے بن کے آ سکتے. ڈیٹیچ ہمیشہ معرفہ ہوتے، مرفوع ہوتے. جو اٹیچ ہو سکتے اسم وہ حالت جر میں ہو سکتے یا نصب ہو سکتے. حالت جر میں ہم پڑھے ہے نا، ریزن کیا پڑھے تھے اس کے، حالت جر میں جانے کا ریزن کیا تھا؟ اس سے پہلے والا اسم مجرور ہو تو وہ تو ہر جر کی بات ہے. میں بول رہی حرف ہوں کہ جر ضمیر جو اٹیچ والے ضمیر ہے وہ مجرور کب ہو سکتے؟ مضاف مضاف الیہ. اس سے پہلے، ہاں، اگر وہ مضاف الیہ بنے ہوں، اگر وہ مضاف الیہ بنے ہوں. اوکے، انفسہم، سو فار ایگزامپل ان سب کے نفسوں پر. اوکے، قلوبہم، علی قلوبہم، ان سب کے دلوں پر. تو قلوبہم یہاں پر ہم جو ہے یہ ایک ضمیر ہے، وہ مجرور ہے یہاں پر. کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ وہ مضاف الیہ بنا ہوا ہے. اس طرح سے آپ جو بھی پہلے کی چیزیں پڑھ لیے وہ آپ کو یاد رہنی چاہیے اور اس کے رولز معلوم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، جی جی تو آیتوں میں دیکھنے آسانی ہوگی پھر انشاءاللہ. نشاط، بارک اللہ فیکی. جی سسٹر نجمہ، نشاط. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، مجھے آپ یہاں بول رہیے اس آیت میں آپ کو کوئی مرکب دکھ رہا ہے؟ ولا علی طعام مسکین. جی، علی طعام نا، یہاں پر شبہ جملہ ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ.
ओके, एक मुरक्कब आपको दिख रहा है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर कंपाउंड है और तो आमिल मिस्कीन भी है ना, तो क्या तो कंपाउंड है? अरे तो आम तो वो है शायद, फेल है शायद। नहीं नहीं, आपने क्या कंपाउंड है कहा? नहीं, मैं सोची अला तो आमिल मिस्कीन समझ रही थी मैं, कंपाउंड है। नहीं नहीं, मैं आपको ये आप लोग को बार बार मैं बोल रही हूँ कि हर जर का सिर्फ और सिर्फ उसके बाद वाले इसम पे असर होता हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं समझ रही पहले तोआमिल मिस्कीन मतलब मुदाफ इलैह बन रहा, लेकिन नहीं होता, तोआम तो खाने को बोलते हैं शायद ना, तो कॉमन होता है ना फूड। है। क्यों मुदाफिले नहीं होता? तामुन नहीं होता, इसम मैं है। पहले मैं फेल और इसमिया में कंफ्यूज होती हूँ, तोआमी है ना, तो मैं सोची अरे ये इसमें होता, नहीं नहीं ये इसमें होता, तोआमुन लिखते ना। देखिए सिंपल चीज है, हर्फ जर आपको दिखा अला, हम क्या जी, पढ़े? उसके वजह ये से हर्फ ये जर के तोआम बाद, जर हो गया। नहीं हर्फ जर के बाद हम क्या पढ़े कि कैसा भी इसम आता। ओके, तो हाँ, आमी तो फेल नहीं हुआ, आपको इससे समझ आ गई कि ये इसम है। जी हाँ, ओके, ये समझ तभी आ आप बोले कि गई। ये मजरूर हुआ। अब आप मुदाफिले में ताम क्यों फेल क्यों समझ रही हैं फिर? हाँ, कंफ्यूज हो गई, नहीं तोआम मुदाफ है और अल मिस्कीन मुदाफ इलैह है। ओके, इसका रफा मुझे बोलिए। मिस्कीनी। मिस्कीनी की रफा मिस अल मिस्कूना, अल मिस्कूना होता है। हाँ, तोआमुल नहीं, मिस्कीन मिस मिस्की एक सेकेंड, मिस्कीनुन, नहीं नहीं, मिस्कुन होता, मिस्कुन क्या? मिस्कुन, मिस इसका मैंने पहले वाहिद आना चाहिए ना वहाँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, बनाइए, आप बनाइए। मिस्कीन, मिस्कीन प्लूरल है, हाँ, जमा पहले आप वो देखिए क्या ये ड्वेल मिस्कीन है या होता प्लूरल है, है। देखिए। ये मिस्कीन, मिस्कीन है ना, प्लूरल है, क्योंकि इन ईना की साउंड है ना, सॉरी, ईना है, देखिए नहीं नून नो, के ऊपर ईना फतहा नहीं, है। नहीं हाँ, ये जमा जमा जर में है ना, ओके, जमा अजर का क्या है बोलिए। अ, ईना क्या है, आईनी, ईना ईना है ना, तो मिस कई नहीं है क्या यहाँ पर, या मिसकीनी है? मिस्कीनी है ना यहाँ पर, तो तो कईनी का भी तो नहीं है मिस्कीन, शायद, कईनी भी नहीं है यहाँ पर। हाँ और फिर जैसा आप बोल रहे हैं मिस्कीन, मुस्लिमीना, ईना नहीं की भी साउंड तो नहीं है, नून के ऊपर फतहा नहीं है ईना, तो ये क्या है? ऐसा इसम है जिसके एंड में मिस्कीन, या और नून आई, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। जी, तो इसका वाहिद क्या है मिस्कीन, मुझे बोलिए। मिस्कीनुन, मिस्कीनुन। मिस्कीन, फिर जैसा कि अच्छा ओके, मीजान, अब हाँ हाँ, मीजान में ये आनी देख के मैं डुअल नहीं बोलूंगी, क्योंकि मीजान खुद एक सिंगुलर वाहिद वर्ड है। ओके, तो ये मीजानुन मिस्कीनी भी वाहिद है। वाहिद है। अच्छा ओके, हाँ मैं ये ईना की साउंड, मगर नून पे फिर जबर नहीं है, मेरे को अब वही वही थोड़ा, मैं आपसे होना बोल के पूछी कि आप कंफ्यूज यहाँ पर हो जाएंगी, मुझे पता था। जी कैसा जी, आप उसका सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि ईना क्या है, नून के ऊपर फतहा है नहीं है, नहीं है, तो ये वाहिद वर्ड है। ओके जी जी, ओके, जज़ाकल्लाह खैर, ये मेरे को कंफ्यूज कर रहा था वाकई में। अब मुझे बोलिए इसकी रफा क्या होगी। इसकी रफा मिस्की मिस्कीनी है ना, तो मिस्कीनुन, ओके, अब मिस्कीनुन नकीरा इसम, यहाँ पर अलिफ लाम के साथ इसम है ना, तो हाँ, अल मिस्कीनु। नुन, अल मिस्कीनु, वेरी गुड। अब ऐसा बोलिए कि यहाँ पर कितने मुरक्कबात आपने देखे इस आयत में? इसमें शिबहुल जुमला एक ही है, फिर उसके बाद फिर मुदाफ मुदाफ इलैह है, ये तो इसको बोलते हैं मुरक्कबे इदाफा। वेरी गुड, माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा। नाम ये फिफ्थ आयत भी करूंगी ना मैं, अल्लज़ी वाली, थोड़ा वो भी करूंगी। हाँ बोलिए, फिफ्थ आयत में क्या है? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, यहाँ पर अल्लज़ीना मुब्तदा बना हुआ
नहीं, यहाँ पर अल्लज़ीना सिफत बनी हुई है मुसल्लीन की, लिल मुसल्लीन, है ना। अब मतलब ये स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। ये जो है, देखिए, ली हर्फ जर ली प्लस अल मुसल्लीन है। जी तो ये अल्लज़ीना से पहले क्या आया? अलिफ लाम वाला इसम आया। हाँ तो जब अल्लज़ीना से पहले अलिफ लाम वाला इसम आए, ये इन कंटिन्यूशन है ये, तो क्या हो जाएगा? अल्लज़ीना आपका हो जाएगा सिफत और उससे पहले वाला इसम हो जाएगा मौसूफ। अब मुझे एराबी हालत बोलिए अल्लज़ीना की। मैम एक सेकेंड, ये यहाँ पर ये आयत स्टार्ट ही अल्लज़ीना से हो रही ना। लेकिन ये इन कंटिन्यूशन है ना, सिफा बन के आई है मुसल्लीन की। अच्छा तो वो कैसे पहचाना कि ये कंटिन्यूएशन में आ रही? वो आपको समझना होगा कि ये शुरुआत में नहीं है, मुब्तदा की तरह ये नहीं आ रहा अल्लज़ीना। ओके, अच्छा अगर ये ये मुब्तदा की तरह आता तो हम फिर मुब्तदा हो गया, सिलसिल मौसूल फिर से मुब्तदा की तरह कैसा आ सकता? हम यहाँ पर क्या बना हुआ है? सिलसिल मौसूल किससे शुरू हो रहा? हम से शुरू हो रहा है ना। और हाँ हम दमीर है, तो ये क्या है? जी इसम है एक, तो कौन सा ये इसम हो रहा? जुमलतुल इस्मिया स्टार्ट हो रहा है ये। जी तो यहाँ पर अल्लज़ीना क्या बना हुआ है? सिफा बना हुआ है किसकी? मुसल्लीन की। अब मुझे बोलिए कि अल्लज़ीना की अरबी हालत क्या है? अल्लज़ीना लिल मुसल्लीन है ना, तो ये मजरूर है, तो अल्लज़ीना भी मजरूर। वेरी गुड। ओके, जी मैम, अब अगर ये 6th आयत में भी अल्लज़ीना है ना, तो फिर हाँ, ये ये भी भी ये सिफत सिफा बनेगी ना अव्वल, साहिल की? ये सिफा अव्वल हुई और ये सिफा सानी हम सेकंड वाली सिफा। अच्छा ऐसा तो ये होता है। सिफत साहुन की सिफत होती। नहीं, साहुन की नहीं, इसकी मुसल्लीन की चाहिए। फर्स्ट ओके सिफा एंड सेकंड सिफा दोनों भी हालत जर में है, ये भी हालत जर में है, ये भी हालत जर में है अल्लज़ीना। इसके लिए थोड़ा मीनिंग आना पड़ता होगा। प्रैक्टिस होने की जरूरत है इंशाल्लाह। जैसे जैसे अभी तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग करा है इस्मुल मौसूल ज़रुल मौसूल की। इंशाल्लाह जैसे अब आयतें भी देखेंगे तो और ज्यादा क्लैरिफिकेशन होगा इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। ठीक है। जज़ाकल्लाह। और इससे रिलेटेड यहाँ पर देखिए, मुझे बोलना था वैलुन, ये जो लफ्ज है वैलुन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। वैलुन, सलामुन और कुल्लुन। जब हम जुमलतुल इस्मिया देखेंगे, मैं इन तीन लफ्जों के बारे में आपको बोलूंगी। ओके, कौन से? वैलुन, सलामुन और कुल्लुन। जब हम जुमलतुल इस्मिया देखेंगे इंशाअल्लाह, तो तब मुझे याद दिलाइएगा कि मुझे इनके बारे में आपको समझाना है। सिर्फ इन लोग को अब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, जज़ाकिल्लाह खैर सिस्टर निशात। नेक्स्ट सिस्टर परवीन, और दूसरी भी निशात है, आप जो सिर्फ निशात है, आप आइए। ओके परवीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सिस्टर परवीन, आप मुझे बोलिएगा कि यहाँ पर आयत नंबर 5 में आपको कोई मुरक्कब दिख रहा है, जो हमने जितने जी मुरक्कबात अब तक पढ़े हैं? जी जी दिख रहा है। अल्लजीना, वो है अल्लजीना, मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन है, और मौसूल है वो। हाँ, इस्मुल मौसूल है। क्या हम इसमें इस्मुल मौसूल और सिलतुल मौसूल को मुरक्कब बोलते हैं? इस्मुल मौसूल जी और बोलते हैं। सिलतुल मौसूल को हम क्या मुरक्कब बोलते हैं? यस और नो? यस बोलते हैं। नहीं, नहीं बोलते। नहीं बोल जी मुरक्कबात में जब हम पढ़े थे तो हम जी सिर्फ क्या बोले कि ताम और नाकिस, और नाकिस में जी जब हम पढ़े तो हम क्या पढ़े? ये वाला चार्ट आपने होमवर्क भी किया था आई थिंक आप लोगों ने, कि जी 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 हर्फ जी जी
یہ دیکھیے جو ناقص مرکبات ہے وہ 4 ہے. اوکے, حرف جر اور اسم مجرور کا کمبینیشن, مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن, مرکب اضافی, یہ شبہ الجملہ ہو جائے گا, یہ مرکب اضافی ہو جائے گا, یہ مرکب اشاری ہو جائے گا, اشارہ اور مشار الیہ, یہ مرکب توصیفی ہو جائے گا, ہے نا. یہاں پر سارے نام لکھے ہیں. یہ 4 مرکبات ہم نے پڑھے ہیں جو کہ ناقص ہے, انکمپلیٹ ہے. جی یہ چوتھے کے بارے میں آج ہم نے دیکھا, صرف موصوف اور صفہ ان ڈیٹیل انشاءاللہ آگے چیپٹر وہ آئے گا وہ دیکھیں گے. انشاءاللہ. تو میں ان مرکبات کی بات کر رہی تھی جو کہ ناقص ہے, اور اس کو جو اسم موصول اور اس کے بعد اس کا جو صلۃ الموصول ہوتا ہے, ہم اس کو مرکب نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے, جی کیونکہ اس کے اندر ہی صلۃ الموصول کے اندر ہی جملۃ الاسمیہ, شبہ الجملہ اور جملۃ الفعلیہ آ گئے, ہے نا. تو اب میرا سوال آپ سے تھا کہ اس آیت نمبر 5 میں کیا آپ کو کوئی مرکب ناقص دکھ رہا ہے؟ نہیں نہیں. دیکھیے اچھے سے, ان حرف جر ہے کہ نہیں ہے؟ ان حرف جر ہے. ہر تو جر اس کے بعد آنے والا اسم کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہو جاتا ہے. تو اس مرکب کو کیا کہتے ہیں؟ حرف جر پلس اسم, تو اس کو کہتے ہیں شبہ الجملہ. شبہ جملہ جی. تو یہاں جی پر شبہ الجملہ بھی ہے, اور صلاتہم کیا ہے؟ صلاتہم مرکب ہے, کون سا مرکب ہے یہ؟ آپ کلاسز صحیح سے نہیں سن رہی تھی؟ جی 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 فالو کر رہی ہوں, مگر تھوڑا سا پریکٹس نہیں کر رہی ہوں, اس لیے ڈفیکلٹ. نہیں, پریکٹس تو کریے گا نا, پھر ورنہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. اوکے, سسٹر رابعہ آپ کیا مجھے بول سکتی ہیں؟ سسٹر رابعہ یا سسٹر رینا؟ جی مضاف مضاف الیہ ہے صلاتہم. ویری گڈ ویری گڈ, ماشاء اللہ. تو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی. جی ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر کثیر بوتھ سسٹرز. اور آپ کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ کو یہ سورہ جو ہے سورۃ الماعون, یہاں پر لکھیے. آپ جو جو بھی مرکبات پہچان سکتی ہیں اس کو پہچانیے گا, اور ریکارڈنگ اویلیبل ہے. اگر آپ کو کچھ بھی جو ہے کنفیوژن ہو رہا ہے تو یو کین ریفر بیک, اور پھر دیکھیے گا اس کو. اور اسم الموصول کون سے ہے, واحد ہے, مثنیٰ ہے یا جمع ہے, وہ پہچانیے. صلۃ الموصول کس طرح سے بن کر آ رہا ہے وہ پہچانیے. یہ والا سورۃ الماعون کا, اور جو ہم نے سلائیڈ دیکھی ہے نا وہ والے ایگزامپلس والی, اس کی, یہ ان آیتوں کی, ٹھیک ہے. ان دونوں کا آپ کو ہوم ورک کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس میں اسم الموصول کون سا ہے, واحد ہے, مثنیٰ ہے یا جمع ہے, وہ لکھیے گا, اور اس کی اعرابی حالت کیا ہے, ٹھیک ہے, اور کیوں ہے. یہاں پر اب میں فار ایگزامپل میں اس کا ہوم ورک کرنے جا رہی ہوں, تو میں سب سے پہلے اس آیت کو لکھوں گی, اور لکھوں گی الذین, یہ جمع ہے. اوکے, اب یہ جمع میں نے ڈیسائیڈ کر لیا. اس کے بعد میں اس کو مضاف الیہ کنسیڈر کر رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے والے اسم پر نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے, اسی لیے. اور میں اس کی اب اعرابی حالت لکھوں گی کہ وہ مجرور ہے, اسم الموصول مجرور ہے, میں ایسے لکھوں گی. اس کے بعد صلۃ الموصول میرا یہاں پر جملۃ الفعلیہ ہے, بس میں اس کو مینشن کر دوں گی, ٹھیک ہے, ایسے. اوکے, اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے, یہ ساری ایسے ہی کریے. پھر سورۃ الماعون کا بھی آپ ہوم ورک کریے. ابھی اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو میں کوشچنس لوں گی, ورنہ وی کین اینڈ دا کلاس. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.